Hello learners, I am Santosh Kumar Nema, PGT Computer Science from Kendriya Vidyalaya Lalitpur. In this video, we are going to learn about SQL and MySQL. Let's start. This is SQL, Structured Query Language. Structured Query Language initially developed in 1970s as SQL. Initially when it was developed, it is named as SQL for Simple English Query Language, and it has been developed at the IBM St. Joe's Research Laboratory and was based on the relational algebra for databases as given by Dr. E.F. Cott in his research paper. डॉक्टर E.F. कॉड ने अपना एक रिसर्च पेपर दिया था जहां से रिलेशनल डेटाबेसेस की कंसेप्ट शुरू हुई है और उस कंसेप्ट को ही इम्प्लीमेंट करने वाला एक एसक्यूएल सिस्टम डेवलप किया गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसे शुरुआती दिनों में सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता था। 1970s में इसे डेवलप किया गया, बाद में इसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाने लगा। और उसके भी बहुत बाद एनसी, दैट इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आईएसओ, हैज अडॉप्टेड इट एज अ डेटाबेस लैंग्वेज और एक स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज की तरह इसे अडॉप्ट किया गया। और एनसी और आईएसओ के थ्रू जो एसक्यूएल के स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए, जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए, वे 1986, 89, 92 में आए और समय के साथ ये इम्प्रूव होते रहे, इनमें वेरिएशंस आते गए, मॉडिफिकेशंस होते गए और ईयर 1999, 2003, 2006, 2008, 2011 एंड 2016 में भी इन्हें अपडेट किया गया। Basically, the structured query language is a data sublanguage used to work with databases. It is not a programming language, it is just a language that is required to work with the databases. This language is basically used to work with the database to manipulate data inside the database and also to create and manage databases. SQL इज नॉर्मली अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। जैसे आप प्रोग्राम्स बनाते हैं तो आपने देखा है कि जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आप कई सारे लॉजिकल सिचुएशंस उसमें डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम अपना एक काम करेगा। तो इन प्रोग्राम्स व्हाट यू डू, यू स्पेसिफाई द एंटायर प्रोसीजर, टू परफॉर्म सर्टेन टास्क and you also define how that particular task will be performed. But when you will be working with SQL along with the databases, you just have to specify what you want to do. You don't need to specify how it should be done. SQL is basically a simple and non-procedural language where you don't need to specify the procedure to perform certain tasks. You just have to specify what task you want to perform on the database and it will do for you. Here you don't need to specify how SQL should do that particular task. SQL is now a part of different database products. Different database vendors often extend SQL to include procedural capabilities in their product. SQL since do not have any procedural capability, but when SQL is incorporated by different database manufacturing companies like IBM, Oracle, Microsoft SQL, what they all do, they simply add procedural capabilities in SQL and give it another name. So there might be PSQL, PLSQL or TSQL. So these are the names for the extended procedural capabilities of SQL in different database products. SQL, since it is a standard language governed by NC, that's why it is always called a structured query language and it maintains its status as non-procedural language. SQL is a case insensitive language. That means you do not need to worry about the capital or small letters. You can type in whatever case and it will work. SQL is supported by nearly all the database management systems. Actually, Dr. E.F. Cott, who have proposed the relational database management systems concept first, he has given one rule, he has specified one rule that every database should support at least one common or universal type of
डेटा लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज का उन्होंने वहां पर कंसेप्चुअली आइडिया दिया था कि एक ऐसी लैंग्वेज हो जो हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज की जा सके, और उस लैंग्वेज को अगर हम सीख लें और उस पर अगर हम काम करें तो हम किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर सकें, ऐसी खूबी होनी चाहिए। तो एनसी ने जब इसे अडॉप्ट किया तो यह इसी तरह से कुछ डेवलप हुई, और एसक्यूएल को आज जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स मार्केट में अवेलेबल है, नियरली ऑल द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स नाउ सपोर्ट एसक्यूएल. So if you have learned SQL, that means there is ample chances that you will be able to work with the any database management systems available today. Now, what are the advantages of using SQL? Basically, SQL is very easy to learn, and it's non-procedural language to perform different tasks on the database, and its main or major perspective is that it is a universal data access language. That means it is supported by all the databases. That's why it's all the advantage lies in this basic fact, under this basic fact that it is a universal language. So what benefits we get through this particular aspect of the SQL? It has reduced training cost. Basically, if every person has to learn about different databases, when they switch to different companies or different databases, they have to learn different database technology. But if they are well versed working, if they know very well how to work with SQL, that means they will be able to work with any of the database. That means they will need less training, so it will reduce training costs definitely. It will increase productivity. How it will increase productivity? That means since the people who are working on the database will not need to learn every new concept or every new database. Since they know how to work with SQL, they will save their time. This will save their time, and in the same time they will give their more output. So productivity will definitely increase. Application portability. Once you have developed an application using SQL का यूज करते हुए अगर आपने कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कोई बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप किया है और उसमें SQL का यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली सिंस SQL इज सपोर्टेड बाय ऑल ऑफ द डेटाबेसेस, तो अगर किसी एक डेटाबेस प्लेटफॉर्म से दूसरे डेटाबेस प्लेटफॉर्म पर सेम एप्लीकेशन को ले जाने की जरूरत पड़ती है, तो उसमें बहुत कम मॉडिफिकेशंस की जरूरत होगी. दैट मींस वी कैन से इट विल प्रोवाइड यू द एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी. Application longevity, that means the application you have developed using SQL will definitely work more longer, क्योंकि बार बार उसमें कोई changes करने की जरूरत नहीं होगी. Even when you switch your underlying database where the data actually is residing, तो अगर उसको भी आप बदलते हैं तो भी आपको नए नए एप्लीकेशंस लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो SQL पर बेस्ड होंगे. तो बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि वो एप्लीकेशन बहुत थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ काम करेंगे या बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन की जरूरत उनमें नहीं होगी. रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल वेंडर. रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल वेंडर, दैट मीन्स सभी इसके जो एडवांटेजेस है वो इसी बात पर आते हैं. मेन जो बड़ा बेनिफिट जो एसक्यूएल हमें मिलता है वो यही है कि यूनिवर्सल डेटा सब लैंग्वेज है. इसलिए जब एक प्लेटफॉर्म पर किसी एक वेंडर से अगर आपने कोई एप्लीकेशंस डेवलप कराए हैं और उनमें आपको कोई मॉडिफिकेशंस कराना है, दैट मींस डेफिनेटली यू कैन गो टू अनदर वेंडर फॉर परफॉर्मिंग द सेम टास्क या डिफरेंट टास्क. आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग वेंडर से आप वो काम करा सकते हैं. आपको किसी एक वेंडर से ही हमेशा काम कराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका कोई डिपेंडेंस की जरूरत नहीं हो जाएगी. एसक्यूएल हर वेंडर उस पर काम करना जानता है, इसलिए बहुत आसानी होगी आपको वेंडर बदलने में भी. क्रॉस सिस्टम कम्युनिकेशन. एसक्यूएल का यूज होने से क्रॉस सिस्टम कम्युनिकेशन आसान हो जाता है. दैट मींस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपका जो डेटाबेस है इट विल वर्क फाइन, और इसलिए एसक्यूएल बहुत ही ज्यादा उपयोगी एक लैंग्वेज है. और आइए अब बात करते हैं एसक्यूएल के पार्ट्स की. बेसिकली ऑल द कमांड्स अवेलेबल इन एसक्यूएल आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज, and that's why they are kept in under different parts. This is just a classification. First classification is the DDL, that is called the data definition language. Why this is called data definition language? Actually it
covers the commands that are used to define the structure of different database objects. जैसे आप टेबल बनाएंगे आगे, जब एसक्यूएल आप सीखने वाले होंगे आप टेबल्स बनाएंगे. टेबल्स के अलावा भी डेटाबेसेस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सिनोनिम्स बनते हैं, क्लस्टर्स बनते हैं, triggers होते हैं, stored procedures, and there are so many different kind of objects inside a single database. And data definition language part, that means the part of the SQL, the DDL part of the SQL gives you the commands those are needed to create, modify or remove different database objects. That's why it is called data definition language commands. The commands those are used or which are used to define the structure of the database or database objects. Another part of SQL is called the DML. This is called data manipulation language. The data that you are going to store inside the database, whenever you need to manipulate this data, whenever you want to store some new data, whenever you want to modify existing data, whenever you want to remove the data from the database, and whenever you want to see that data, then you will be using a command from the data manipulation language. Basically, there are 4 commands: insert, update, delete and select. These 4 commands forms the data manipulation language part of SQL. Third part of SQL is called the DCL. DCL means the data control language. You can say it as data access control language also, because whenever there is a larger database and there is a system to access this database from anywhere from anywhere in the world, कहीं से भी जब उस डेटाबेस को एक्सेस करने का कोई सिस्टम एक बनाया जाता है, क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म होती है, और नेटवर्क लिंक के थ्रू भी जब डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकने वाला होता है, तो इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है कि वी कुड restrict the access to the database so that no authorized person can access the database and use the data inside the database. So whenever you will be using a database, what you will do, you will create user accounts with proper credentials, that means the user IDs and password, and apart from that you will also define what a particular user can do with the database, what data he will be able to access and what operations he can perform in future. This all can be precisely defined using the commands अंडर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड्स का यूज करके आप यूजर्स को इस बात की परमिशन दे सकते हैं, एग्जैक्टली आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो यूजर उस डेटा के साथ क्या क्या काम कर पाएगा और क्या काम वो नहीं कर पाएगा. एग्जैक्टली यू कैन डिफाइन ऑल द प्रिविलेजेस एंड दिस इज डन यूजिंग 2 commands. One is grant command is actually these are just 2 commands, but they have so many different aspects और इतने कॉम्प्रहेंसिव तरीके से इनको यूज किया जा सकता है कि you can precisely define what a particular user can do with the database. तो grant command से you can allow him to perform certain task on the database, and using the revoke command you just remove the permissions given previously. Then the last part of SQL is called the transaction control language. Transaction control language means the commands that covers the operations being performed through a series of operations. Basically what happens whenever you will be performing a single task having multiple commands. जैसे if you want to transfer some amount from one account to another, if it is a bank's database, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ पैसे का ट्रांसफर करना है, तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे? उसके लिए आपको पहले अकाउंट से बैलेंस को रीड करना होगा, एंड आफ्टर रीडिंग दैट बैलेंस यू विल सब्ट्रैक्ट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड. जितना पैसा ट्रांसफर करना है उतना आप पहले अकाउंट से कम करेंगे और फिर दूसरे अकाउंट का बैलेंस रीड करके उस दूसरे अकाउंट में उतना पैसा ऐड करेंगे. तो यहां पर एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन है कि पहले अकाउंट में पैसा कम करना है, दूसरे अकाउंट में पैसा आपको ऐड करना है. अब ये काम एक स्टेप में नहीं हो सकता, इसको मल्टीपल स्टेप्स में करना होगा. तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन. तो मल्टीपल स्टेप में एक सिंगल काम हमको करना है, वन टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड बट इट हैज मल्टीपल स्टेप्स.
तो अब अगर यहां पर हम देखें कोई सिचुएशन ऐसी हो कि एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद किसी कारण से फेलियर आ जाती है, सिस्टम काम नहीं करता है, तो पहले अकाउंट से पैसा कम कर दिया आपने, दूसरे अकाउंट में पैसा आपने ऐड नहीं किया, और इसके बाद अगर आप टेबल से डेटा से इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे बैंक की, तो जैसे अगर आपने 5000 रुपीज एक अकाउंट से कम करके दूसरे अकाउंट में ऐड करना था, लेकिन आधा काम हुआ, फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हुई, पैसा एक अकाउंट से तो कम हुआ लेकिन दूसरे में 5000 ऐड नहीं हो पाया, तो जब आप उस बैलेंस को चेक करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज इंटीग्रिटी लॉस ऑफ रुपीज 5000, दैट मीन्स 5000 रुपीज का हिसाब कहीं से नहीं मिलेगा। तो वो पैसा कहां गया? वो पैसा बेसिकली कहीं नहीं गया। हुआ क्या कि आपका सिस्टम फेल हो गया एक मल्टी स्टेज ऑपरेशन को करते हुए, और उसका आधा पार्ट हुआ नहीं। तो कहीं भी जब भी इस तरह की कुछ ऑपरेशंस की जाती हैं तो उसमें ये कोशिश की जाती है, कुछ इस तरह के मैकेनिज्म्स लगाई जाती हैं जिससे कि या तो पूरे चेंजेस हो मल्टीपल स्टेप में होने वाले, या वो चेंजेस बिल्कुल ना हो। तो इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो बड़े प्रोग्राम्स जब बनाए जाते हैं तो उनमें ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स का यूज किया जाता है। एंड दीज कमांड्स आर रोल बैक इज टू अंडर the changes you have made, and commit is to successfully save the changes you have made. So these two commands are although not in syllabus at that level, but these are the two commands, those are very much used in the professional programs where the databases are being programmed. So these were the four parts of the SQL. Now we start learning about MySQL. Basically what we have learned, you must have learned about the databases in previous chapters कि databases क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। SQL एक ऐसी लैंग्वेज है जो databases पर काम करती है। Now it's time to learn about MySQL. What is MySQL? MySQL is an open source relational database management system. Why it is called open source? Since source code is always available with the database. जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो उसमें सोर्स कोड होता है, एंड इफ यू आर गुड प्रोग्रामर देन यू कैन मॉडिफाई दिस ऑल्सो। तो it is an open source relational database management system. Why it is called relational database management system? Since it is based entirely based on the relational model given by Dr. E.F. Cott in 1970s at St. Joe's Laboratory. अब इसका नाम MySQL क्यों हुआ, इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है। इसका जो नाम है, इट्स नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माई इज द नेम ऑफ इट्स को फाउंडर माइकल विडनियस डॉटर, उनकी लड़की का, उनकी बेटी का नाम था माई, और एसक्यूएल क्योंकि ये एसक्यूएल की कंसेप्ट पर बेस्ड है, रिलेशनल अलजेब्रा पर बेस्ड है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी को इसमें इंक्लूड किया गया, इसलिए इसका नाम उन्होंने रखा MySQL. MySQL is basically a free and open source software under the terms of GNU, जनरल पब्लिक लाइसेंस। GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस है जो इस बात की परमिशन देता है कि इफ यू हैव द कॉपी ऑफ MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर देन यू कैन गिव इट टू एनीबडी एल्स आल्सो एज फ्री सॉफ्टवेयर। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर इसमें आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन के साथ भी आप इसको फ्रीली आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह की कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं, और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं यू कैन एक्सप्लोर अबाउट GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस टर्म्स। इसके बारे में आप डिटेल में इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ कंपनीज ने इस MySQL को लेकर अपने प्रोप्राइटरी वर्जन्स भी बनाए हैं, तो कुछ प्रोप्राइटरी एडिशंस भी MySQL के अवेलेबल हैं। MySQL जब इनिशियली बना तो एक स्वीडिश कंपनी थी जिसने इसे नाम भी दिया था MySQL AB, और बाद में इसे सन माइक्रो सिस्टम्स ने खरीद लिया, और सन माइक्रो सिस्टम्स को बाद में ऑरेकल ने अंडरटेक किया। तो अभी जो MySQL है वो बेसिकली इट इज प्रोवाइडेड बाय ऑरेकल कॉर्पोरेशन ऑल्सो। जो MySQL है it has standalone clients that allow users to interact directly with MySQL database using SQL. But more often MySQL is used with other programs to implement applications that need relational databases capability. क्योंकि MySQL फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और फ्रीली अवेलेबल है, इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए अलग से कोई कॉस्ट आपको नहीं इनकर करनी होती है। तो ज्यादातर लोग MySQL को यूज करते हैं जब भी उन्हें एक डेटाबेस फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है डेटा को स्टोर करने के लिए, और सिंस इट आल्सो सपोर्ट्स SQL इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जहां भी कहीं डेटा, जब भी अगर आप मान लीजिए कोई एक वेबसाइट बनाते हैं फ्यूचर में जिसमें आपको डेटा स्टोर करने की जरूरत होगी बहुत सारा, तो यू विल डेफिनेटली बी यूजिंग MySQL इन दैट केस।
MySQL बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स पर यूज किया जाता है. ऐसा एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड LAMP. LAMP is basically a set of different software products. Those are used to develop web applications. इसमें Linux होता है, Apache होता है, MySQL है, और MySQL के साथ Perl, PHP या Python में से किसी एक को इंक्लूड करके एक सेट बनता है, और इस सेट का यूज करके Apache वेब सर्वर है, Linux ऑपरेटिंग सिस्टम है, MySQL डेटाबेस हो गया, Perl, PHP और Python का यूज करके वेब स्क्रिप्टिंग या वेबसाइट लेवल की जो प्रोग्रामिंग होती है वो की जा सकती है. तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा पॉपुलर है, और इस पॉपुलर कॉम्बिनेशन का यूज करके कई सारे वेब एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं. तो MySQL भी इस पॉपुलर कॉम्बिनेशन का एक बहुत पावरफुल पार्ट है. MySQL को कई सारी कंपनीज कई अपने डिफरेंट डेटाबेस ड्रिवन वेब एप्लीकेशंस में यूज करती हैं, जैसे Drupal, Joomla, PHP, BB एंड वर्डप्रेस. ये सब कंटेंट मैनेजर्स हैं, और बहुत सारे का डेटा इनको स्टोर करने की जरूरत होती है डिफरेंट वेब प्लेटफॉर्म्स के लिए. तो ये जो कंटेंट मैनेजर्स हैं ये भी अपना डेटा स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा हद तक MySQL का यूज करते हैं. MySQL का यूज फेसबुक, फ्लिकर, मीडियाविकी, ट्विटर और यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स भी करती हैं. तो MySQL एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल है और ओपन सोर्स है. अब देखते हैं कि किस तरीके से आप MySQL में काम कर सकते हैं. तो सबसे पहली तो जरूरत होती है MySQL आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो. MySQL के कई अलग अलग तरह के एडिशंस या वर्जन्स अवेलेबल होते हैं जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं. whenever you install a MySQL particular MySQL database management system on your computer, if it is a Windows system, MySQL will be installed as a server. एक छोटा सा सर्विस प्रोसेस बनती है, एंड दिस प्रोसेस इज रजिस्टर्ड अंडर विंडोज सिस्टम. एक सर्वर की तरह ये काम करता है, और जैसे ही आपका विंडोज सिस्टम स्टार्टअप होता है वैसे ही MySQL सर्वर भी रन हो जाता है, जो बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है. एंड टू वर्क इन MySQL यूजर्स विल नीड ए क्लाइंट सॉफ्टवेयर. आपको एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी. मैंने कहा अभी कि जब आप एक MySQL को स्टार्ट करेंगे, यूजुअली इंस्टॉल करने के बाद जब इसको यूज किया जाता है तो एक सर्वर की तरह आपके कंप्यूटर में रन हो रहा हो सकता है, या आपके कंप्यूटर में नहीं तो आपके नेटवर्क में किसी एक मेन कंप्यूटर पे रन हो रहा होगा, जहां से आपके कंप्यूटर तक इसको एक नेटवर्क लिंक के थ्रू एक्सेस किया जा सकेगा. और जब भी आप सर्वर सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं किसी भी सर्वर को, तो उसके लिए उसका एक कोरस्पॉन्डिंग क्लाइंट सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है. ये जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर MySQL के लिए होगा, इसका नाम है MySQL कमांड लाइन क्लाइंट. ये एक ऐसा छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कमांड लाइन पर टाइप करके MySQL को कमांड्स भेज सकते हैं थ्रू द नेटवर्क लिंक. सेम कंप्यूटर पर आपका सर्वर रन हो रहा हो या रिमोट कंप्यूटर पर नेटवर्क लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो, दोनों ही स्थिति में आप MySQL कमांड लाइन क्लाइंट का यूज करके सर्वर तक एक्सेस कर सकते हैं, और उस डेटाबेस पर आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो जब भी आपको इस पे काम करने की जरूरत होगी, यू हैव टू लोकेट MySQL कमांड लाइन क्लाइंट. विंडोज इंस्टॉलेशन में आप उसको सर्च कीजिए MySQL कमांड लाइन क्लाइंट को, और इसको रन कीजिए. जैसे आप रन करेंगे इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड. देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म in which you can also specify the username और पासवर्ड. तो जो भी एक मैकेनिज्म होगी, आपको यू हैव टू स्पेसिफाई द यूजर नेम और पासवर्ड ओनली. तो वो आप जैसे स्पेसिफाई करेंगे, दिस विल बी गिवन टू यू बाय योर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और योर टीचर. as soon as you put your password in, it will log you inside the database, and you will be able to work with the database. जब आप एक बार डेटाबेस में लॉगिन हो जाएंगे MySQL सिस्टम में, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. आपके पास एक ऑप्शन होगा, यू कैन क्रिएट योर ओन डेटाबेस इफ यू डू नॉट हैव एनी डेटाबेस yet, और यू कैन open the existing database created by you or somebody else if you have the privileges or permissions to use that particular database at your username. तो जब आप अगर अपना डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ कमांड मिलेगी क्रिएट डेटाबेस, और यू हैव टू प्रोवाइड द डेटाबेस नेम. आप कमांड देंगे क्रिएट देन डेटाबेस, और उसके बाद आपको डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करना है. एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, दिस विल सिंपली क्रिएट द डेटाबेस विद द नेम यू हैव स्पेसिफाइड हियर. After creating the database, if you want to use that database or any other database, whenever you want to work with any particular database, first you have to open your database.
Actually, the database will be running as a service. You just have to tell your command line client, your client software, that you want to use this particular database. So for this, you have to specify this command. This is a command where you will tell your command line client that you want to use a particular database, and it will be open for you to use, and then you will give the data name of the database, whatever name is there, and as soon as you press enter, the database will be activated at your login. That means your command line client will be able to contact with that particular database. That means there will be a connection established with your command line client and the database wherever it is running, on the server or on your computer. So these are the ways how you can create a database, or how you can use an existing database. Once you have created database, you can start working with it. You will learn how to create tables and how to put values in them, and how to modify or use those values. But before that, you must learn about the data type supported by the MySQL. MySQL में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, उनकी क्या रेंज है, वो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप डेटाबेस को बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाए. तो किसी भी सॉफ्टवेयर में यूजुअली इन द डेटाबेसेस एंड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, data types are the most important things to learn. Data types are most important things to learn, and in MySQL the following data types are there. We are just going to learn about these data types. First, you can learn about the numeric data types, and inside the numeric data type there is also a classification. This is integers. इंटीजर्स मीन्स द वैल्यूज दैट विल नॉट हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट, जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, और उसके बाद का जो हिस्सा होता है डेसिमल पॉइंट के बाद का, वो हिस्सा नहीं होगा. ऐसी वैल्यूज को आप इंटीजर कहते हैं. आपने ये चीजें सीख रखी हैं, यू नो दिस ऑलरेडी. और इंटीजर्स के कितने टाइप हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स. जैसी आपके प्रोग्राम की आपके डेटा को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली यू विल चूज द करेक्ट डेटा टाइप. एंड चूजिंग करेक्ट डेटा टाइप इज ऑलवेज अ बिग रीजन फॉर द एफिशिएंसी. दैट मीन्स आप मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करेंगे वो एक बड़ा पार्ट होता है हमेशा. इसलिए हमेशा करेक्ट डेटा टाइप सेलेक्ट करना चाहिए. डेटा टाइप कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत ज्यादा बड़ा हो, जितनी वैल्यूज आपको स्टोर करनी है एज कंपेयर टू देम, और बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि बड़ी वैल्यूज स्टोर करें तो वो उसमें आ ही ना पाए. तो यहाँ पर कुछ डेटा टाइप्स मैंने लिस्ट किए हैं. These data types, you can see first one is the tiny integer. Tiny int means it will occupy 1 byte for one value, 1 byte for one value, and it will be able to store -128 to +127. तो अगर आपको एक बहुत छोटी वैल्यू स्टोर करना है जो सिर्फ -128 से 127 की रेंज में होगी, तो आपको अपने टेबल में जब डेटा आप सिलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए, किसी वैल्यू के लिए, तो यू विल बी चूजिंग टाइनी इंटीजर. और इसमें आप मिनिमम वैल्यू जो रेंज यहाँ पर दी हुई है, अगर आप साइन के साथ वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसकी रेंज होती है -128 टू +127. बट इफ यू वांट टू स्टोर अनसाइंड वैल्यूज स्टोर करने के लिए आपको जो रेंज अवेलेबल हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से 255. तो अप टू 255 if you want to store without specifying the sign, you can use tiny integer. How to specify sign और अनसाइंड, ये आप जब टेबल क्रिएट करना सीखेंगे तब आपको बताया जाएगा. अनसाइंड कीवर्ड को डेटा टाइप के नाम के बाद लगा दिया जाता है, और इस तरीके से यू कैन स्पेसिफाई दैट यू वांट टू यूज डेटा टाइप एज अनसाइंड डेटा टाइप. तो इस केस में आपका जो डेटा टाइप होगा, जो कॉलम होगा, उसकी वैल्यू की रेंज बदल जाएगी. और अगर आपने अनसाइंड डिफाइन किया है तो इट विल बी चेंज to 0 to 255 from -128 to +127. So this is all about these signed and unsigned integer types. But if you want to store larger values, there are different types. Small int, it occupies 2 bytes for one value. Medium int, it occupies 3 bytes for one value. Int occupies 4 bytes for one value, and big int occupies 8 bytes for one value. And you can see here, this is definitely you will be learning about the ranges here. और यहाँ जो ranges हैं वो उतना ही उसी proportion में यहाँ बढ़ जाती है. अगर आपको बड़ी values स्टोर करनी है तो ये बड़ी values आपको यहाँ उस accordingly आप डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं. जब भी आप टेबल स्पेसिफाई करेंगे, इंट और इंटीजर डेटा टाइप दोनों का मतलब एक ही है. बेसिकली इंट और इंटीजर बोथ आर सिनोनिम्स. So this is all about the integer data types.
Then the next data type is floating point. Basically whenever you want to store values with fractional part, जैसे कि उसमें डेसिमल पॉइंट भी होगा, अगर ऐसी कुछ वैल्यूज को आपको स्टोर करना है, देन यू विल चूज फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट और फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट हम आगे देखेंगे. फ्लोटिंग पॉइंट में दो डेटा टाइप सपोर्ट आपको यहाँ मिलता है, फ्लॉट एंड डबल. फ्लॉट और डबल में आपको यहाँ अंतर आ जाता है रेंज का. यहाँ फ्लॉट में एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स की जगह मिलती है, जबकि डबल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एक वैल्यू के लिए 8 बाइट की लोकेशंस मिलती हैं, और उस अकॉर्डिंगली वैल्यू की रेंज में काफी अंतर आ जाता है. और फ्लॉट डेटा टाइप या डबल डेटा टाइप को अनसाइंड नहीं लिया जा सकता है, लेकिन यूजुअली इन्हें साइंड ही यूज किया जाता है. जब आप टेबल्स बनाएंगे और टेबल्स में फ्लॉट या डबल डेटा टाइप आप यूज करना चाहेंगे, तो यूजुअली आपका सिर्फ इतना लिखना सफिशिएंट होगा कि आप अपने डेटा टाइप को फ्लॉट लिख दें या आप लिख दें डबल. आपको उसमें किसी तरह का कोई साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप फिर भी कभी साइज स्पेसिफाई करते हैं, जैसे किसी कॉलम के लिए आप स्पेसिफाई करते हैं डेटा टाइप फ्लॉट, और फ्लॉट के अंदर आप यहां देते हैं 10,2. So what it means? This is given here. M is M and D. So M 10 means the total length of value. That means जो पूरा डेटा होगा वो 10 कैरेक्टर्स में डिस्प्ले होगा, 10 डिजिट्स होंगे, और उसमें से 2 डिजिट ऐसे होंगे जो डेसिमल पॉइंट के बाद होंगे. तो टोटल डिजिट्स होंगे 10, डेसिमल पॉइंट के पहले 8 और डेसिमल पॉइंट के बाद 2. तो इस तरह से आप फ्लॉट या डबल में साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं. दो इट हैज बीन सेड दैट दिस इज डेप्रिकेटेड. दैट मींस एसक्यूएल के माई एसक्यूएल के अभी जो वर्जन्स आ रहे हैं उसमें तो ये फीचर मिलता है, साइज आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से. बट इन फ्यूचर वर्जन्स आप सिर्फ फ्लॉट और डबल ही लिखेंगे. ये जो मैकेनिज्म है इसको हटा दिया जाने वाला है. इसको करेक्ट नहीं माना जाता है. जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस चीज को रिसर्च करके उन्होंने ये चीज कही है कि ये तरीका स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड अगर आपको यूज करना है तो आप सिर्फ फ्लॉट और डबल लिखकर भी वैल्यूज डाल सकते हैं. एंड रिमेंबर वन थिंग, whenever you are specifying data type for a particular column, first ensure the range of values that you want to put in that particular column. क्योंकि अगर आपने डेटा टाइप छोटा सेलेक्ट कर लिया तो उसमें बड़ी वैल्यूज आप नहीं डाल पाएंगे, और जैसे ही आप उस रेंज के बाहर की वैल्यू कॉलम में इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, MySQL will raise an error. वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. फ्लोटिंग पॉइंट मैकेनिज्म और फिक्स पॉइंट मैकेनिज्म में डेसिमल पॉइंट को मेमोरी में किस तरह से डेसिमल पॉइंट वाले डेटा को स्टोर किया जाएगा, इसमें अंतर होता है. अब क्या अंतर होता है ये अभी आपके सीखने की चीज नहीं है, आप इसको चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो हमारे कोर्स के बाहर की चीज है. पर फिक्स पॉइंट डेटा टाइप भी आपको अवेलेबल है MySQL में, एंड इट इज कॉल्ड डेसिमल, और इसे आप न्यूमेरिक डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं. दोनों ही सिनोनिम्स हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं. फिक्स पॉइंट डेटा टाइप है, करेंसी डेटा के लिए ज्यादा यूजुअली इसका यूज किया जाता है. इफ यू आर गोइंग टू स्टोर सम साइंटिफिक वैल्यूज देन गो फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, और उसमें क्योंकि काफी सारी वैल्यूज आप स्टोर कर पाएंगे, काफी अलग उसमें रेंज आपको मिलती है. लेकिन अगर करेंसी वैल्यूज स्टोर करनी है, बड़ी रेंज तक का कोई करेंसी अमाउंट वगैरह आपको स्टोर करना है, नॉन साइंटिफिक डेटा है, तो आप न्यूमेरिक या डेसिमल कॉलम डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये बेसिक चीजें हैं. डेसिमल डेटा टाइप का जो बेसिक मैक्सिमम लेंथ है वो है 65 डिजिट्स तक की वैल्यू इसमें स्टोर की जा सकती हैं. अगला जो डेटा टाइप हम सीखेंगे वो है डेट. डेट इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप एज फार एज द कॉमर्शियल एप्लीकेशंस आर कंसर्न. जब भी आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाते हैं, आपको हमेशा ये ध्यान आता होगा कि कितने दिनों में इंटरेस्ट मिलता है. तो वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन बिटवीन टू डेट्स, दो डेट के बीच में कितने साल हुए, कितने वीक हुए, कितने मंथ हुए, या आज से 10 दिनों बाद की डेट क्या है, 3 महीने बाद की डेट क्या होगी, या आज से 175 डेज बाद क्या डेट होगी, तो आपको बहुत सारा डेट बेस्ड कैलकुलेशन करना होता है. डेट बेस्ड कैलकुलेशन के लिए द परफेक्ट थिंग इज द डेट डेटा टाइप. इफ यू हैव चोजन द डेट डेटा टाइप, दैट मीन्स you will be able to perform date based calculations, and there are 4 data types specifically available. You can use them to store dates. First is date. If you want to store date only, then you will use the date data type, and it will store dates in YYY MMDD format.
एंड इफ यू वांट टू स्टोर टाइम अलोंग विद द डेट ऑल्सो, अगर आप कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें आपको किसी इवेंट का डेट और टाइम दोनों ही एक साथ रखना है, तो एक ही वैल्यू में डेट और टाइम दोनों स्टोर किया जा सके, अगर ऐसा डेटा टाइप चाहे तो यू कैन चूज डेट फ्रॉम डेट टाइम. If you want to store only time, then you can choose time, and if you want to store year value only, तो आप integer भी select कर सकते हैं, but you can also choose year. इसमें आप m की वैल्यू 2 या 4 स्पेसिफाई कर सकते हैं, और by default it is 4. year की वैल्यू को आप 4 डिजिट में स्टोर कर सकते हैं. जो लास्ट जो डेटा टाइप्स के बारे में हमको समझना है वो है स्ट्रिंग और टेक्स्ट. व्हेनेवर यू विल बी स्टोरिंग वैल्यूज, डेफिनेटली यू विल बी in the need to store, you will be in need to store alphanumerical values like text, running text, किसी का नाम, किसी का एड्रेस, कोई बड़ा सा टेक्स्ट. अगर ये सब कुछ आपको स्टोर करना है तो उस समय आपको स्ट्रिंग या टेक्स्ट डेटा टाइप की जरूरत होगी. ये डेटा टाइप्स एसक्यूएल में कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं. दो बेसिक डेटा टाइप हैं जो आपको 1 से 255 कैरेक्टर्स तक 1 से 255 कैरेक्टर्स तक सपोर्ट करते हैं. कैरेक्टर डेटा टाइप और वेरकेर. जब आप इनको स्पेसिफाई करेंगे किसी कॉलम के लिए तो यू विल स्पेसिफाई हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट. एम का यूज करके कितने 25 कैरेक्टर्स चाहिए आपको, 30 कैरेक्टर्स चाहिए, अप टू 255 कैरेक्टर्स यू कैन स्पेसिफाई एनी वैल्यू. तो दीज टू आर द कैरेक्टर डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप जिसमें आप टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं. केयर और वेयर केयर. बेसिकली केयर इज द फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग एंड वेयर केयर इज द वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग. अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एक कॉलम बनाया नेम, आपने एक कॉलम बनाया नेम और इसका आपने साइज दिया 25, और इफ यू हैव डिफाइंड इज एज कैरेक्टर, अगर आपने इसको कैरेक्टर डिफाइन किया तो दैट मींस नेम कॉलम विल होल्ड 25 कैरेक्टर्स इन एनी केस सिंस इट इज अ फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग. फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होने के कारण ये 25 कैरेक्टर्स ही होल्ड करेगा. अब इफ यू आर एंटरिंग अ नेम दैट इज हैविंग ओनली 15 कैरेक्टर्स, तो व्हाट अबाउट रेस्ट 10 कैरेक्टर्स. तो 10 कैरेक्टर्स की जगह पर उस नाम के बाद 10 स्पेसेस ऐड कर दिए जाते हैं. तो रेस्ट स्ट्रिंग विल बी पैडेड विद स्पेस कैरेक्टर्स. तो इस तरह से ये 25 कैरेक्टर्स ही ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, और अगर नाम छोटा भी है तो भी वो 25 कैरेक्टर्स ही ऑक्यूपाई करेगा. लेकिन अगर आपने इसकी बजाय वेयर केयर डिफाइन किया है डेटा टाइप, अगर आपने वेयर केयर लिया है तो वेयर केयर का जो इस कॉलम का जो लेंथ होगा वो होगा मैक्सिमम लेंथ 25 कैरेक्टर्स. इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड मोर देन 25 कैरेक्टर्स. बट यस, डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग टू स्टोर वैल्यूज in less than 25 characters, if the value is having less than 25 characters, that means it will occupy in memory only that much space. अगर 10 characters का नाम स्टोर करेंगे तो 10 कैरेक्टर्स की मेमोरी ही ऑक्यूपाई होगी, बाकी 15 जो यहां पर है उतनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा. इसके बाद जो बड़े टेक्स्ट वैल्यूज को आपको स्टोर करना है, इससे ज्यादा अगर आपको टेक्स्ट स्टोर करना है तो ज्यादा टेक्स्ट स्टोर करने के लिए आपको टेक्स्ट, टाइनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप मिलते हैं. इनमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है. अगर आप टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करते हैं तो टेक्स्ट डेटा टाइप में आप 65,635 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं, और ये जो कैपेसिटी है दिस इज 64 किलोबाइट्स. अगर आप इससे भी बड़ा टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं तो उस केस में आप मीडियम टेक्स्ट ले सकते हैं जो बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको अलाउ करता है, और इसे आप कह सकते हैं दिस इज 16 MB कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड हियर. और अगर उससे भी बड़ी वैल्यूज आपको स्टोर करने की जरूरत पड़े तो यू कैन यूज लॉन्ग टेक्स्ट. लॉन्ग टेक्स्ट अलाउ यू टू स्टोर अप टू 4 GB कैरेक्टर्स. तो जब भी आप कुछ इस तरह का डेटा टाइप यूज करना चाहेंगे जिसमें अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर करना है तो आप टेक्स्ट वाले पार्ट्स यूज करेंगे. बट समटाइम्स क्या होता है आपको कुछ ऐसे वैल्यूज स्टोर करनी होती है जो टेक्स्ट नहीं होती. अब क्या कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो टेक्स्ट नहीं होती, तो आपका फोटोग्राफ, कोई ग्राफिक्स, कोई वीडियो, कोई साउंड, कोई बनी बनाई फाइल जैसे PDF फाइल, या इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट, इफ यू वांट टू स्टोर दैट इन अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, इन एवरी रिकॉर्ड ऑफ योर टेबल, तो उस समय आप टेबल का डेटा, उस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप क्या लेंगे. उस समय आप डेटा टाइप जो चूज करेंगे वो होंगे बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स. ओके, तो उस समय आपको जो जरूरी होगा वो होगा बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट
बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, और इसके लिए आपको डेटा टाइप्स मिलते हैं बीलॉग, टाइनी बीलॉग, मीडियम बीलॉग एंड लॉन्ग बीलॉग। और ये आपका जो ऑब्जेक्ट आप स्टोर करने वाले हैं वो कितना बड़ा हो सकता है मैक्सिमम, उस अकॉर्डिंगली यू विल चूज। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 64 KB तक होगा तो यू विल चूज बी लॉग। इफ द ऑब्जेक्ट विल बी लेस देन 255 बाइट्स, तो उस केस में आप टाइनी बीलॉग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 16 MB तक की फाइल्स आपको अपलोड करनी है डेटाबेस के अंदर किसी रिकॉर्ड में, तो आप मीडियम बीलॉग सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको 4 GB तक का डेटा एक सिंगल रिकॉर्ड के अंदर एक पर्टिकुलर कॉलम में डालना है, तो उस कॉलम की जो डेटा टाइप आप सेलेक्ट करेंगे दैट विल बी लॉन्ग बीलॉग। तो ये हुए कुछ डेटा टाइप्स जिनको आप यूज कर सकते हैं एसक्यूएल में। जब आप काम करेंगे टेबल बनाते समय, यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप्स फॉर पर्टिकुलर कॉलम्स, और उस समय आप इन डेटा टाइप्स का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद डिफरेंट वीडियोस में आप और भी बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू।